Assalamualaikum guys, Dr. SJ is here. So in the previous video we were discussing about the composition of upper limb. In that we have discussed that there are the 4 regions in which there are the various bones. Now coming to the point, there were the major 6 regions in which we have to classify further it into 4 regions, which includes the 2 main regions, that's the thigh and the leg. So it says that in the thigh and leg ये क्या होते हैं are compartmentized. Thigh and leg क्या होते हैं compartmentized होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं compartments में divide होते हैं और इनके हर compartment में क्या होती हैं इनके अपने muscles, nerves and blood supply होती हैं. Okay, so thigh and leg are compartmentized and in each compartment it has its own muscles, on distinct nerve and blood supplies. Muscles क्या करती हैं, perform करती हैं group of functions. Now when we are talking about muscles, so there are various kinds of muscles which include sarcotorus, iliopsoas, pectinus and quadriceps femoris. Okay, so these are the muscles of thigh and leg in each compartment. And when we are talking about the nerve and blood, so nerve which supplies the nerve or neurons to the thigh and leg are supplied by femoral nerve and the blood is supplied by femoral artery. Got it? Now the next part in the overview is the disease or the problems which are concerned in the lower limb. There are various types of disease which are concerned with the lower limb, which includes arthritis, varicose veins, vascular deficiencies, fractures, dislocations, sprains, lacerations, knee effusions, leg pain, ankle joint, which is mainly the sprain, peripheral nerve injury. So one by one we will discuss each with a few little detail, because in the further chapter we will discuss it by majorly we will discuss it, or mainly we will discuss its whole details. Got it? So the first one is arthritis. Arthritis का मतलब क्या होता है? Swelling and tenderness of one or more of joints. ठीक है, swell हो जाना या tenderness मतलब stiffness आ जाना एक या एक से ज़्यादा joints में, तो उस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? आर्थराइटिस कहते हैं. ये हर पार्ट में हो सकती है, बट जैसा कि हम जो है किसकी बात कर रहे हैं, लेग की या अपर लोअर लिम्ब की, तो उसमें क्या होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं सिम्टम्स इसके मेन क्या होते हैं? एक तो जॉइंट पेन हो जाता है, जॉइंट्स में पेन पड़ जाना, और बॉडी क्या हो जाती है? स्टिफ हो जाती है. और इसकी जो होती है लेग्स में 2 कॉमन टाइप होती हैं. एक क्या होती है? ऑस्टियो आर्थराइटिस और र्यूमेटॉइड क्या होती है? र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस. ओके, सो इसकी पिक्चर जो है वो शेयर की गई है आगे. So that's arthritis. दूसरी डिजीज़ हमारे पास है वो क्या है? वेरिकोस वेन्स. वेरिकोस वेन्स क्या होती हैं? swollen twisted veins that lie just under the skin and usually occur in the legs. ठीक है, ये क्या होती हैं? swallow होती हैं, twisted मतलब folded veins होती हैं, जो किसकी होती हैं? under the skin होती हैं, और यूजुअली ये किस में होती हैं? legs में होती है. और हम legs की डिसऑर्डर्स के बारे में बात करें. कॉमन कंडीशन जो काज बाय होती है इनकी वजह से, वो किसकी वजह से होती है? मतलब कॉमन कंडीशन जिसकी वजह से वेरिकोस वेन्स होती है वो क्या होते हैं? वीक और डैमेज वेन्स, वेन वॉल्स और वॉल्स की वजह से जो होती है वो डिजीज़ क्या होती है? वेरिकोस वेन्स होती है. इसकी पिक्चर भी शेयर की गई है. डेफिशिएंसी विच वी हैव इज़ वेस्कुलर डेफिशिएंसीज, और इसमें काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज आ जाती हैं. ये क्या होती है? इट्स अ कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द वीनस वॉल एंड और वॉल इन द लेग वेन्स आर नॉट वर्किंग इफेक्टिवली. जब वेन की वॉल्स जो हैं इफेक्टिवली वर्क नहीं करेंगे तो जो कंडीशन हो जाती है हमारी वो क्या होती है? वेस्कुलर डेफिशिएंसीज में आ जाती है. और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्लड आ तो जाता है वे लेग्स में, हार्ट से जो है वो आर्टरीज के ज़रिए आराम से जो है वो कहाँ पर आ जाएगा? लेग में या लोअर लिम्ब में आ जाएगा, बट
क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है ब्लड का रिटर्न होना हार्ट में, मतलब वेंस के ज़रिए ब्लड वापस नहीं जा सकता, क्योंकि वेंस क्या होती हैं, स्वॉलो होती हैं और उनके वॉल्स क्या करते हैं, काम नहीं करते। और हमें पता है वेंस के वॉल्स काम नहीं करेंगे और वो क्लोज नहीं होंगे तो वो क्या होगा, ब्लड नीचे ही फ्लो करेगा, ऊपर जा ही नहीं सकेगा, क्योंकि वॉल्स क्या करते हैं, ब्लड को प्रिवेंट करते हैं कि वो जो है वो बैकवर्ड ना जाए। और इसकी पिक्चर्स भी हैं। Another disorder which is common, ओके तो कॉमन डिसऑर्डर होता है वो क्या होता है, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। फ्रैक्चर्स में क्या होता है, बोन जो होती है ब्रेक होती है, व्हेनेवर अ बोन इज ब्रेक और क्रैक द इंजरी इज कॉल्ड, दैट इंजरी इज कॉल्ड फ्रैक्चर। उस इंजरी को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर कहते हैं। ये सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स जो है उसको रिमेंबर कर लें, सिंपल जो होते हैं वो बाकी सबों की। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जब जो बोन्स के पोर्शन, नोबी पोर्शंस होते हैं, लाइक पोर्शंस कौन सी बोन्स के, हिप, नी और एंकल जॉइंट के पोर्शंस जो होते हैं बोन के, मतलब सिंपली कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर तब हम कहेंगे जब नोबी पोर्शन हो किसके, हिप के, नी के और एंकल जॉइंट के, उनमें फ्रैक्चर आ जाए तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। और अगर उनके अलावा कहीं पर भी फ्रैक्चर आ जाए या माइनर फ्रैक्चर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। और फ्रैक्चर की वैसे तो काफ़ी टाइप होती हैं, बट हमारी इस लेवल तक तो हम क्या करेंगे, याद करेंगे कि फ्रैक्चर की कितनी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं, स्पाइरल, कम्यूटेड और ओपन। और इनकी भी पिक्चर्स शेयर की गई हैं, देखिए। डिसऑर्डर वी हैव इज डिसलोकेशन। डिसलोकेशन का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाना। सिंपली डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, डिसलोकेशन कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट हमें क्या पता है कि वो जो है वो बोन्स की नहीं हो सकती बल्कि जॉइंट्स की हो सकती है, क्योंकि बोन्स तो क्या होते हैं, हार्ट रिजिड टिश्यू होते हैं, वो कैसे डिस्प्लेस हो सकते हैं। तो जॉइंट्स में क्या हो जाती है, डिसलोकेशन क्या इंजरी होती है किसकी, जॉइंट्स की, जिसमें क्या होता है, एंड्स ऑफ बोन्स फोर्स फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशंस में क्या करते हैं, मूव जाए, मतलब जो है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। और इसमें डिसलोकेशन जो कॉमन हमारे पास वो होती है वो क्या होती है, नी डिसलोकेशन। डिजीज वी हैव इज स्प्रेन्स में क्या, स्प्रेन क्या है, स्ट्रेचिंग और टियरिंग ऑफ लिगामेंट्स की स्ट्रेच हो जाना, टियर हो जाना, फट जाना, उसको हम क्या कहते हैं, स्प्रेन कहते हैं। ओके और ये जो है इसमें जो होता है कॉमन जो होता है वो क्या यूज़ होता है हमारे पास, कॉमन जो होता है वो कौन सा एरिया होता है, एंकल वाला एरिया। उसमें जो होता है उसमें अगर टियरिंग हो, स्ट्रेचिंग हो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्प्रेन कहते हैं। यही स्प्रेन हमारे पास एंकल की इंजरीज़ में भी आ जाते हैं। और इनकी पिक्चर्स Another disease we have is lacerations. Laceration is a wound that occur when skin tissue और मसल is torn और कट और ओपन। ठीक है, जब लेसरेशन कब कहेंगे, जब कोई वाउंड आ जाए, जैसे सिंपली हमें वाउंड्स आ जाते हैं जिसमें स्किन टिश्यूज़ या मसल्स वगैरह टॉर्न हो जाए, ओपन हो जाए, तो उस वाउंड को हम क्या कहते हैं, लेसरेशन कहते हैं। ये डीप भी हो सकते हैं, शेलो भी हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं, वाइड भी हो सकते हैं और नैरो भी हो सकते हैं, मतलब इनकी काफ़ी सारी टाइप्स हो सकते हैं। और इनकी पिक्चर्स ये नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव नी फ्यूजन। नी फ्यूजन में क्या होता है, स्वालो हो जाते हैं, स्वेलिंग काज बाय एक्सेसिव फ्लूइड। हमें पता है कि जो जॉइंट्स के जो है वो क्या होता है, हमारे पास जॉइंट के दरमियान में एक फ्लूइड होता है जो क्या होता है, प्रिवेंट करता है, जिसको हम बर्सा भी कहते हैं या साइनोवियल फ्लूइड भी कहते हैं, जो उनको मतलब जो रगड़ना होता है उससे बचाता है। ठीक है, फ्रिक्शन को रिमूव करता है सिंपली। तो अगर वो फ्लूइड जो है साइनोवियल फ्लूइड और बर्सा जो है वो क्या होता है, एक्सेस हो जाए, नी जॉइंट के अराउंड में एक्सेस हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, नी जॉइंट जो होता है स्वालो हो जाता है, एरिया स्वालो हो जाता है, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो उस टाइप की डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, नी फ्यूजन कहते हैं। मेन जो है डिजीज़
बाकी जो हमारे पास हो जिसके लेग जो है वो पेन डिफरेंट डिजीज़ की वजह से हो सकता है, आर्थराइटिस की वजह से भी हो सकता है, फ्रैक्चर्स की वजह से भी हो सकता है, ETC काफ़ी वजह से हो सकता है। और हमारे पास फिर क्या होती है, एंकल इंजरीज़ वगैरह भी हो सकती हैं। और दूसरी पेरिफेरल नर्व इंजरीज़ में हमारे पास क्या होता है, जब नर्व्स की वजह से कोई इंजरी आ जाती है पेरिफेरल पार्ट्स वगैरह में, तो उसको हम ये कहते हैं। होप सो यू गॉट इट, एंड इंशाल्लाह विल अपलोड फर्दर series of lectures. Thank you for giving me your time. Hope you like it.